Right, today our topic is uniform and non-uniform motion, a very important topic in physics. First, we will study uniform motion. Uniform motion. Please listen carefully, right? Very important topic. The definition is when a body, I told you body is your anything. It could be a vehicle, anything. When a body covers equal distance in equal interval of time. Please mark this word, right? Equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. Is known as uniform motion, right? Suppose, right? Suppose a person is at A place, right? He goes to B place, right? And the distance is 2 kilometer and the time taken is half hour. Got it? Able to see board, right? From A to B, the distance is how much? 2 kilometer, and the time taken is how much? 1.2 hours में, यानी कि इसको हम we can also write 30 minutes. 30 minutes होता है, right? अब second, from B to C, पहले a person goes to A to B, then B to C. Again he travels 2 kilometer and the time taken again half hours, right? Same finish C से D, again 2 kilometer and the time taken half hour, right? ये D part and last E part again 2 kilometer and half hour. You can see here a person travel equal distance in equal interval of time. देखो time interval equal है, half hour. हर जगह कितना time लग रहा है? half hour हो रहा है. The time interval is equal, right? And the distance is also same. The distance is also same each time, 2 kilometer, 2 kilometer, 2 kilometer, and the time is also same. यानी कि when a body cover equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. ये कौन सा motion हो गया? Right, along a straight road. अब remember in uniform motion, can you find the speed? जब आप when you go from A to B, can you find the speed? What is the formula for speed? Time. What is distance? How much? 2 kilometer. What is time? Half hour. But always remember, when distance is kilometer, we will take time in hours, right? Now you can see a fraction, then 1, then a smaller fraction, then 2 will go to the numerator. Then speed is equal to 4 kilometer per hour, right? ये speed कहाँ से? From A to B में. Got it? Can you find the speed B to C? What will the answer? 4 kilometer per hour. Can you find from C to D? So you can see each time the speed क्या होगा, right? Please mute your mic. बेटा from if you travel from A to B, B to C, C to D या D to E, each time the speed is how much? 4 kilometer. The speed remain constant. Speed क्या होती है? Constant, right?
एनीवन? वेट अ मिनट, एक मिनट होल्ड करना प्लीज, लेट मी सी समथिंग. Right, remember always, when a body cover equal distance in equal interval of time is known as uniform motion, and in this part the speed always remain constant. हर बार स्पीड क्या होगी? इक्वल आएगी आपकी. राइट? एनी बेटा, राइट नाउ आई एम सेइंग स्पीड इक्वल आएगी ऑलवेज. यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहां पर आपकी स्पीड हमेशा क्या होगी? इक्वल आएगी. द स्पीड विल बी ऑलवेज इक्वल. दिस इज क्लियर? राइट. और इसका कभी एक ग्राफ आएगा ना, ग्राफ आता है देखो, यहां पर हम टाइम बनाते हैं और यहां पर डिस्टेंस आता है. इस तरह का ग्राफ जब भी मिलेगा, ये कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. द ग्राफ इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अभी सिंपल यू अंडरस्टैंड, राइट? कि देखो टाइम ये रहा, डिस्टेंस ये रहा, एंड ये स्ट्रेट लाइन हियर. दिस ग्राफ इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ. राइट क्लास? ठीक है. एनी प्रॉब्लम इन एनी प्रॉब्लम हियर? राइट, प्लीज म्यूट योर माइक. यस. एससीजी नहीं होता बेटा, सीजीएस होता है. आपके 2 यूनिट, किसकी यूनिट चाहिए? सीजीएस. अच्छा, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. सी मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. गॉट इट? ठीक. सीजीएस, जो सीजीएस यूनिट है, इट इज मेड ऑफ 3 थिंग्स: सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. राइट? इट इज अब नाउ द सेकंड पार्ट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम when a body does not cover, right? when a body does not cover equal distance in equal interval of time is known non uniform motion. non motion. अब सी देखो, ए बी सी और डी. लेट्स टेक द टाइम इज हियर, ये सॉरी द डिस्टेंस 2 किलोमीटर. राइट? हियर लेट्स टेक here 3 kilometer and here 6 kilometer. Got it? Less the time taken is again half hour and half hour. Right? अब देखो आ रहा है डिस्टेंस. बेटा पहले listen to me. First, there are 4 places A, B, C, D. The distance between A and B is how much? 2 kilometer. The distance between B and C is how much? And the distance between C and D is how much? 6 kilometer. Right? Up you can see the distance is unequal. Distance change है. Right? The time is same. Right? You can see for the first hour from A to B, the speed will be how much? This is about time. So how much? 4 kilometer per hour. Can you find speed here from B to C? B to C में क्या होगा? देखो
So 3 upon half, it will go upside, it becomes 6 kilometer, and from C to D, to, now you can see the speed is different, right? So then, right, the speed is different, then this, it is non-uniform motion. Got it? बेटा ये लिखा है डेफिनेशन देखो, when a body does not cover equal distance in equal interval of time equal ले रहे हैं हम, we are taking the time equal, but the distance travel is different. देखो यहाँ पर स्पीड बढ़, यस, ये भी होता आपका, हाँ, राइट, ठीक है. इवन वी कैन, प्लीज म्यूट माइक. लिसन, ये भी होता आपका, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ये लिखना, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. गॉट इट. अगर मैं, वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू चेंज, अगर आप एक चीज और करते हो, राइट, लेट्स से डिस्टेंस सेम 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 2 किलोमीटर. बेटा बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है? नॉट एबल टू सी. हाँ, तो अब देखो, फ्रॉम ए टू बी लेस द टाइम टेकन इज 20 मिनट. ये 20 मिनट नहीं, हाफ आवर ही ले लेते हैं, ठीक है, हाफ आवर. फ्रॉम बी टू सी द टाइम टेकन इज 1 hour लेस, ही इज वेरी राइट. एंड फ्रॉम सी टू डी अगेन द टाइम टेकन वी कैन टेक, इट टेक 2 hours ले लेते हैं. अगेन द स्पीड इज डिफरेंट नाउ. यहां पर स्पीड निकालोगे, स्पीड कितना आएगा? 4 किलोमीटर पर आवर. यहां पर स्पीड कितनी आ रही है? 2 किलोमीटर पर आवर. यहां पर स्पीड आएगी तो 1 किलोमीटर पर आवर आ रहा है. Again you can see the distance remains same but the time is changed. Then also this is non-uniform motion. ये क्या है आपका? Non-uniform motion. Got it? Right? And कभी इसका ग्राफ आएगा तो ग्राफ हमेशा इसका इस तरह बन के आता है, राइट. कभी here is your distance, here is your time, तो इस तरह का एक ग्राफ बन जाता है आपका. दिख रहा है आपका, ये कर्व बन रहा है, ये इक्वल नहीं होता. यू विल नो व्हेन यू कम टू हायर क्लासेस, यू विल नो हाउ टू मेक ग्राफ, राइट. अभी मैंने एक क्लास में मैंने अभी ये ग्राफ बनाया था. दिस ग्राफ इज ऑफ, ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का. द ग्राफ इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट. एंड बेटा ये सर, बेटा ये रहा आपका, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, डोंट वरी. अभी ये चीज है ना, यू कैन सी हियर, राइट. अभी मैं आपको समझा दूंगा, सेम ऐसे ही बनता है आपका ग्राफ, डोंट वरी, राइट. ये वेलोसिटी भी आएगा, टर्म इसका होगा आपको, डोंट वरी. दीज टू आर क्लियर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपका, और टी मतलब टाइम. बेटा अभी आएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, राइट. उसका मैं आपको क्लियरली डिफरेंस समझाऊंगा आपको, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट. अब नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वी शुड नो टू थिंग्स, टू क्वांटिटीज. देयर आर टू मेन क्वांटिटीज इन फिजिक्स, राइट. एक होता आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता आपका स्केलर क्वांटिटी,
राइट। अगर आपको फिजिक्स में पढ़ना था, फिजिक्स में ये दो वर्ड तो मालूम होने चाहिए पहले तो, वेक्टर क्वांटिटी एंड विच स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, देखो राइट, स्केलर क्वांटिटी राइट आर दोज, राइट, इसको ध्यान से देखना, ये जो है आपके दीज आर द क्वांटिटीज, राइट, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, राइट, बट नो डायरेक्शन। बेटा ये वर्ड याद रखना कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है जिसका खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, राइट, एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, नाउ यस आर्यन, देखो एग्जाम्पल एरिया, राइट, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, सपोज यू कैन सी अ बुक, आपकी केमिस्ट्री, ये देखो ये बुक है केमिस्ट्री बुक, राइट, द शेप क्या लग रहा है आपको फिजिक्स का बुक का, द शेप इज लाइक अ, कैन यू फाइंड द एरिया, अगर मैं इसकी लेंथ दूंगा, इसकी ब्रेथ दूंगा, लेंथ, राइट, तो सपोज लेट्स प्लीज लेट्स एज्यूम द एरिया इज 6 मीटर स्क्वायर आ गया, गॉट इट, हमने क्या मान लिया 6 मीटर स्क्वायर, द एरिया इज हाउ मच 6 मीटर स्क्वायर। अब क्या आपको इसमें कहीं डायरेक्शन आ रही है, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन, कैन यू फाइंड द डायरेक्शन, इसमें देयर इज नो डायरेक्शन, एरिया में कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो नंबर आया, प्लीज लिसन फर्स्ट, द नंबर इट इज रिटन है, द एरिया इज हाउ मच 6 मीटर स्क्वायर, इज दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, राइट। अगर आपको वॉल्यूम कहीं पर वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम इज 6 मीटर क्यूब, तो ये क्या बन गया, लिसन टू मी, क्या अगर आपके सामने अगर ये लिखा है, क्या इससे कुछ पता चला कि आपकी डायरेक्शन कि इट इज इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ समझ में आ रहा है इससे, तो इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, उसपे क्या क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, राइट, तो जो डायरेक्शन नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, इट इज नोन एज, बेटा मैग्नीट्यूड ये तो क्या कि नंबर प्लस हाथ में यूनिट, ये मैग्नीट्यूड होता है आपका, ये क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड। अब सपोज देखो ए से बी द डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर है, अब ये 100 किलोमीटर है, अब कैन यू फाइंड द डायरेक्शन में कुछ लग रहा है आपको डायरेक्शन होगा कुछ, वो खाली बीच का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज, द डिस्टेंस इज हाउ मच 100, तो ये जो नंबर लिखा मैंने, नंबर प्लस ये यूनिट, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है, नंबर प्लस यूनिट क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, राइट, वेट यू विल कम वन, वेट मैं बता रहा हूं, पहले ये तो क्लियर हो जाए, स्केलर आपका टाइम, मैंने कहा 6 आवर्स, मैंने कहा व्हाट इज टाइम, आपने बोला 6 आवर हो गया, कैन यू डिफाइन डायरेक्शन हियर, आपको 6 आवर से डायरेक्शन पता चल रहा है, आपके पास नंबर भी आ गया, यूर हैविंग नंबर ऑल्सो, यूर हैविंग यूनिट ऑल्सो, तो ये आपका दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, गॉट इट, तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या हो गए, द स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल आर एरिया, वॉल्यूम,
वॉल्यूम, टाइम, ठीक है। अब इसके अलावा अब नेक्स्ट पार्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी, हाँ डिस्टेंस ऑल्सो, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो सोर्स डायरेक्शन। क्या दिखाता हो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गॉट इट? जैसे क्या था एग्जांपल, वेट। अब आपने देखो, आपने कोई एक वेट है, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है जिसका आप वेट नाप रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर आपने कोई सामान रख दिया, यू पुट समथिंग हियर, तो इसका कुछ वेट होगा। और वेट कहां जाता है? वेट हमेशा कोई नीचे की ओर जाता है। अगर आप तराजू में देखा, तराजू में कोई सामान रखो नीचे जाता है, इट गोज डाउन। तो वो इट शो डायरेक्शन, यानी कि नीचे जा रहा है। अब डायरेक्शन क्या मिल गया? डाउनवर्ड हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने आपको लिख दिया ऐसे 20 kg, राइट, 20 kg, साथ में यहां पर लिख दिया मैंने डाउनवर्ड, साथ में क्या लिख दिया? 20 kg डाउनवर्ड। तो 20 kg आ गया मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या लिखा गया साथ में? डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गया। तो ये क्या बन गया आपका? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अनदर एग्जांपल, एक कंफ्यूजन एग्जांपल है। देयर आर टू थिंग्स, एक होता है स्पीड, ठीक है, इस और नहीं, और एक होता है आपका वेलोसिटी। अनदर टर्म इज वेलोसिटी, राइट। अगर आप पे क्वेश्चन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड की यूनिट है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक लिखा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, साथ में ये पूरा लिखा गया 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अब देखो स्पीड क्या, देखो इट इज हैविंग ओनली नंबर एंड यूनिट, तो ये कौन सी क्वांटिटी बन गई? इट बिकम विच क्वांटिटी? विच क्वांटिटी? देयर आर टू, कौन सी क्वांटिटी बन गई? स्केलर, स्केलर। अब यू कैन सी इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आपको दिख रहा है डायरेक्शन? बेटा आ रहा है, पीछे लिखा हुआ ईस्ट, आगे लिखा हुआ। अब आपको मालूम है कि साथ में ईस्ट क्या होती है? ईस्ट एक डायरेक्शन होती है, ईस्ट इज अ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये कौन सी क्वांटिटी होगी? दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर। तो हम, तो वी कैन से वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती? हाँ, एग्जांपल ऑफ वेक्टर इज वेलोसिटी, राइट। एग्जांपल ऑफ स्केलर इज स्पीड। गॉट इट? राइट, इट इज क्या? अनदर एग्जांपल, another very important example, there are two things, distance and displacement, ठीक है। अभी इनको मैं अभी समझाऊंगा इनके बारे में। डिस्टेंस आपका क्या होता है? इट इज योर स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो यार ना, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट? यस, नो? राइट, गॉट द डिफरेंस? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। नाउ मैं आपको वही टॉपिक करा रहा हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड दूसरा कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ यू एबल टू सी? अब देखो,
इसका देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। ये क्यों, ये कैसा पाथ होता है? दिस इज योर एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, राइट? राइट, गॉट इट? दिस इज द एक्चुअल, या इसको हम ये भी कहते हैं द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कहते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। इसका मैं एग्जांपल समझाऊंगा, राइट? हियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये सबसे शॉर्ट रास्ता होता है, वो आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए। अब एग्जांपल देते हैं, राइट? या इसको हम ये भी कहते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, मतलब शुरू का, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, कि शुरू का और आखिरी पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सीधा इनिशियल स्टार्टिंग होता है और फाइनल एंडिंग होता है आपका। गॉट इट? स्टार्टिंग यानी शुरू का। अब देखो एग्जांपल देखो प्लीज, ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा बेटा। पहले एग्जांपल देखो, अपना आप समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक ए और बी है, द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। ए से बी पे डिस्टेंस कितना है? राइट? अब देखो प्लीज, पहले यहां ध्यान से देखो, राइट? अ मैन, right, he travel from a man from A, he travel and he reach B at B place। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले ए पे था, अब बी, तो द डिस्टेंस इज हाउ मच? 10 किलोमीटर, राइट? ध्यान से सुनना, देखो आप देखो, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल था ये स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टार्टिंग में यही तो था, और फाइनल में कहां पहुंच गया? रिच इज एट फाइनल पॉइंट कौन सा बन गया? बी बन गया। द फाइनल पॉइंट इज, राइट? इनिशियल कौन सा है? ए। फाइनल क्या है? अब बताओ, इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है? हाँ, तो 10 किलोमीटर, यानी कि इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो हाउ मच? 10 किलोमीटर। ये समझ में आ गया? लिसन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट? ये समझ में आया? Here in this example right now both are same. Got it? Right? अब in this example, अब now again change, I am changing it, इसको mid drop कर देते हैं। Again a man, he start from A, he reached to B, B पे गया और वापस कहां आ गया? A पे आ गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? द डिस्टेंस इज हाउ मच? 20 किलोमीटर। उसका इनिशियल पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट इज ए। व्हाट इज फाइनल पॉइंट? फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल भी ए हो गया, तो वापस अपनी जगह पे आ गया। तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया? अब आप बताओ कि अब आप क्या मेजर करोगे? अगर वापस ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 क्यों बेटा? वो तो वापस, मैंने ये देखो, ये क्या लिखा है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल। अब तो वापस वहीं पे आ गया। आप पहले ए बी पे गए, बी से वापस आ गए, आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो गया। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट पे? तो 0 होगा, राइट? यानी कि आप वापस उसी जगह पे आ गए। तो अब क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट बिकम
राइट, गॉट इट, समझ गए आप? अब अंतर आ गया दोनों में। इट मीन्स कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो बन सकता है बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। मैंने क्या बोला, हमें दोबारा बेटा वो दोबारा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देखो अगेन करते हैं, लेट्स टेक थर्ड केस। अ मैन he start from A, goes to B, then come back to A, then again goes to B. Now the distance is 30 kilometer. Initial point is, initial point A, final point B, B. अब ये बताओ इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने का है, कितना है बेटा इनिशियल और फाइनल? 10। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम 10 किलोमीटर। गॉट इट? राइट, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। गॉट इट? और डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, आपने कितना ट्रेवल किया। आप पहले ए से बी गए, बी से ए पे गए, वापस बी पे चले गए, यानी कि आपने 10 कवर किया, देन अगेन 10 गए, देन अगेन 10 गए, तो टोटल कितना होगा, 30 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल के बीच में, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होता है आपका, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए से लेकर बी के बीच में, कितना है 10, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस इज क्लियर, राइट? तो राइट नाउ फॉर दिस क्लास, दिस मच ओनली वी विल डू इन फिजिक्स क्लास। बेटा ठीक है,